Hello, everyone. Welcome back to Sports Kabaddi, Curious Harry, and Indian Food and Football. We're here to talk about a few things. The first thing that we're going to start with today. First of all, very good evening to everybody here. Hi, Hiren and Shan. But the first thing we're going Hello, to talk hello. about is the Indian football team, national football team. The men's team is set for action in a week against Kuwait away, and something that we're really waiting for is a squad amount announcement. Sorry, Lord Becky, just a minute late. We're trying to stick to time, but yeah, um, yeah. So the squad announcement is something that we're really looking forward to. Igor Stimac has come on given a few statements. Hiren, you just want to just quickly tell us what he said and what you expect ahead of this squad announcement that will come in a couple of days, hopefully. हेलो टू एवरीवन एंड डेफिनेटली आज उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है एक मीडिया हाउस को एंड वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने क्लियर भी की है कि किस तरह का चैलेंज रहने वाला है कुवैत है कतार के सामने एंड कौन कौन से कंसर्निंग एरिया है उसके बारे में भी बात रखी है एंड स्क्वाड अनाउंसमेंट के रिगार्डिंग एग्जैक्टली उन्होंने ये नहीं बोला कि कब वो यहाँ पे फाइनल स्क्वाड अनाउंसमेंट करेंगे लेकिन आई थिंक जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि अभी हम दुबई में देखेंगे ट्रेनिंग सेशन एक दो तीन ट्रेनिंग सेशन हो गए उसके बाद वो देखेंगे कि कौन से प्लेयर वो रिथम में दिख रहे हैं वो फिटनेस या फिर वो फॉर्म में दिख रहे हैं उसके हिसाब से आई थिंक वो फाइनल्स को डिसाइड करेंगे लेकिन एक जो बढ़िया न्यूज आई थिंक और एक राइट डिसीजन जो उन्होंने बना आज उसके दौरान कंफर्म कर दिया ऑलमोस्ट कि अपुया विल बी इन द फाइनल स्क्वाड सो दैट्स अ ग्रेट टू नो एंड उन्होंने आई थिंक जिस तरह से उन्होंने बात भी रखी तो आई थिंक वो जो प्रॉब्लम की बात आ रही थी आई थिंक वो कहीं ना कहीं अब सॉर्ट आउट होती दिख रही है उन्होंने बोला कि he earned his place he coming back in the national team with the good performance in the ISL and in the ACL so that's a great to see कि एक ऐसा टैलेंट और जो कोच के बीच में जो भी लिफ्ट हुआ था वो फाइनली लग रहा है कि अब वो सॉर्ट आउट हो गया तो दैट्स अ गुड पार्ट फॉर द इंडियन फुटबॉल टीम दूसरा उन्होंने कंसर्न जताया रिगार्डिंग द थ्री की प्लेयर्स आसिफ कुरुनियान जिक्सन एंड अनवरली का ना होना वो कितना ज्यादा इम्पेक्ट डाल रहा है एंड उसके अलावा हम आगे बात करेंगे कि कितना बड़ा चैलेंज है उन्होंने कुवैत को एक टीम बताया कि हमने साफ में भी बोला था मैंने कि भाई कुवैत इज नॉट इजी टीम चाहे उनकी रैंकिंग पे मत चाहिए कि कुवैत ओरिजिनली मतलब 80 टू 90 रैंक वाली फीफा रैंक वाली टीम है ना कि 130 140 वाली जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है और उसके अलावा उन्होंने कतार मैच का भी जिक्र किया तो ये सारी चीजें उन्होंने बात रखी है Fair enough, fair enough. Kansak, if I speak in Hindi, then I think I've said this before. Everyone will run away, unfortunately. Um, and then yeah, Vineet is saying Igor looks cool with आप Apoya. क्वेश्चन करो Looks like हिंदी में कोई इशू नहीं हाँ आप ही इंग्लिश में क्वेश्चन करो exactly. Yeah. So Igor does look cool with Apoya. Final squad not announced yet. We're waiting for it still. Again, Vineet saying everything between Igor and Apuya looks cool. Shan, how important was Apuya's inclusion? Because there is no Jigson. Hiren just spoke about it. We've spoken about it a lot of times in the past. Jigson injured probably out till Jan. So how important was Apuya for the squad? actually he was left with no option you ask me he Hmm. was left with no option to take him because uh, one hand his performance and on the other hand Jackson's injury I think both the things played a part in this and I think and Apuya deserves to be in the Indian playing 11 because if you see currently he's the best midfielder we have in our country if you see what you have seen in the ISL in fact he has played well. I think we should mention that he has played well against good quality opponents. I think very few Indian players are able to match up with very good opponents, and I think he's one of them. उनको वो डर नहीं था जो आई थिंक हिंदी में बोलने से वो डर नहीं था जो फेस कर रहे थे जब अलीलाल का मैच भी जब मैं देख रहा था both the legs that match also they lost by huge margin but if you see he was fearless and those kind of characters you need in the national team वो कैरेक्टर हमको चाहिए नेशनल टीम में और ये सब चीज ना इंटरनेशनल गेम्स में ये इंपॉर्टेंट है मेरे को लगता है उनका इंक्लूजन आई थिंक इट्स अ गुड थिंग उनको समझ में आया एटलीस्ट ही अंडरस्टूड पीपल मेक मिस्टेक इट्स हाउ वी लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक हम लोग गलती करेंगे उससे उसको कैसे हम सुधार सकते हैं वो अच्छा है उन्होंने लर्न किया है एंड होपफुली आई थिंक इन कमिंग टाइम्स अपुया का इंक्लूजन इंडिया को अच्छी जगह ले जाएंगे इट इज अ टफ गेम फर्स्ट गेम इज वेरी टफ इफ यू आस्क मी आई थिंक कतर 21 तारीख का मैच से भी मैं 16 तारीख का गेम को ज्यादा टेंशन में हूँ बिकॉज आई थिंक वो वाला गेम अवे में हम लोग का जो रिकॉर्ड है दैट इज गेटिंग कंसर्न और बार बार जब मैं कुवैत का नाम लेता हूँ मेरे को 2009 का याद आ जाता है तो तो मैं
अभी भी है. So hopefully we don't do like that. We play and I think we give a fight against Kuwait in Kuwait. Let's see what happens. एक में एक मैं सैन भाई की बात से एग्री करूंगा कि आपके पास ऑप्शन भी एज सच कोई नहीं था, टू बी ऑनेस्ट. अगर आप नंबर 6 के रोल पे देखें तो वो व्हाट आर द अदर ऑप्शन. आपने मतलब नो डाउट क्या बोलते हैं ग्लान मार्टिन्स को लाया है, लेकिन हम सबको पता है कि आई थिंक इगो स्टेमिक भी कन्विंसिंग नहीं होगी. एक स्टेटमेंट जो उन्होंने आज इंटरव्यू में बोला कि काफी सारे ऐसे प्लेयर है कि जिनका जुलाई में फॉर्म अच्छा था, लेकिन अभी जो कोड में सिलेक्ट हुए उसमें कुछ प्लेयर ऐसे कि अभी भी उनका फॉर्म डाउन है, जिसमें से एक तो रोहित कुमार आते हैं मेरे हिसाब से. सुरेश वांगजाम को भी कहीं ना कहीं आप बोलेंगे कि उतना ज्यादा फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं. उदांता भी आप उसी कैटेगरी में मेरे हिसाब से रखेंगे कि भले एक मैच आपने गोल मार दिया, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस आप नहीं बोलेंगे कि उतना ज्यादा बेहतर है उनका. सो आई थिंक कपल ऑफ प्लेयर्स ऐसे है कि जिनका फॉर्म आप बोलेंगे कि जुलाई में या फिर जून में जो साफ है इंटरकॉन्टिनेंटल के दौरान था, उससे काफी ज्यादा गिरावट भी आई है. सो दैट्स आल्सो वन ऑफ द रीजन कि यहाँ पे अपुया सिलेक्ट हुआ है. एक विनीत लाखरा भाई का क्वेश्चन था कि भाई ये जो सारा एएफएफ में मसला चल रहा है, तो भाई इतना टेंशन मत लीजिए विनीत लाखरा भाई. सच कोई मतलब क्या बोलते कि ये सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी. एंड इसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट नेशनल टीम में मेरे को नहीं लगता कि पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक ऑलरेडी एवरीथिंग हैज बीन मैनेज. तो दैट्स अ ग्रेट टू सी. एंड जो भी लोग आए हैं वो भी कैपेबल लोग हैं, तो आई थिंक वो भी उनको भी माइंड होगा कि किस तरह के इंडिया के जो अपकमिंग चैलेंजेस है, तो कितना क्रूशियल है कि जल्दी से जल्दी आपको सारी चीजें इन ऑर्डर लानी है, रादर देन कि भाई जो ये मसला है वो चलता ही रहे. एंड आज आई थिंक जो एक्सको की कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें काफी सारी चीजें क्लियर भी हो चुकी है कि किस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ने वाले हैं. सो उसका इतना टेंशन मत लीजिए विनीत लाखरा भाई. नेशनल टीम में आई डोंट सी कि ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा. आई थिंक एवरीथिंग विल बी आई थिंक क्या बोलते हैं कि जो शिफ्ट ऑफ पावर है वो आई थिंक वो भी स्मूथली हो जाएगा. एंड आई थिंक प्लेयर कोचेस एंड वो उनको भी आई डोंट थिंक सो कि उतनी ज्यादा कोई दिक्कत आएगी. सो इसका टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए. Yeah. Mallikarjun, I agree with this. I think Apuya, at least both the games against Al Hilal, I think that's the difference. You can see the quality difference in, I think, other Indian players and him, because he was just too good. I think quality against Al Hilal, barely made any mistakes, was brilliant. So the other contentious point is, of course, the centre back role. Anwar Ali is out. So who starts replacement? We've spoken about this. Vineet saying Mehtab should start alongside him. I think Mehtab should start alongside him, but I'm not too confident about it. Shan, are you confident Mehtab along with Sandesh? Because it looks like he's going to go that route. He did that against Malaysia. So are you confident about it? That centre back pairing? See, actually सेंटर बैक पोजीशन में हम लोग के पास ऑप्शन कहाँ है. आई थिंक दैट्स द मेन थिंग. तो वो एक चीज है. एंड मेरे को जो लग रहा है इगोर जो सोच रहे हैं, आई थिंक ही वुड गो विद समबडी ना जो इंटरनेशनल मैच हाल फिलहाल में खेल के आए होंगे. मेहताब ने ही हैज प्लेड अगेंस्ट गुड क्वालिटी ऑपोजिशन. अल हिलाल के साथ अवे में खेला, यहाँ पर भी खेला. तो मेहताब आई थिंक अच्छा है, बट ही नीड टू कीप हिज टेम्परामेंट. मेहताब को लेकर मेरे को एक ही डर लगता है, टेम्परामेंट लूज कर जाता है. बिकॉज मेहताब जब खेल रहा था ईस्ट बंगाल जूनियर से, उसका स्टार्टेड हिज करियर एंड आई नो हिम. सो उसका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ही लूजेस हिज टेम्परामेंट वेरी क्विकली, एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम व्हिच ही हैज एज एन प्लेयर. और यहाँ पर क्या होता है ना, इन आईएसएल में क्या होता है, हम लोग को कार्ड दिखाने में भी रेफरी 4 बार सोचता है. उनको पब्लिक को बैलेंस रख के उनको कार्ड दिखाना. मगर इन केस ऑफ इन एएफसी कप वो नहीं होता है. उनको लगा एक टैकल और आपको कार्ड मिल जाएगा. तो ये चीज हमको मेरे को डर लग रहा है. होपफुली मेहताब अच्छा खेले, बट क्या करूं, किसका नाम लूं एक्चुअली. साना का भी आज अभी जो हालत है, इफ यू सी जो हमारे पास ऑप्शन थे पहले, मतलब 2 साल पहले साना वाज पार्ट ऑफ दिस टीम. ही वाज पार्ट ऑफ दिस कोर टीम. साना अभी नहीं है. तो साना का भी अभी जो रिसेंट फॉर्म है, आई थिंक लाल को बोल रहे माइंडसेट भाई, बट लाल का भी मैच्योरिटी हैज नॉट कम टू दैट लेवल दैट ही कैन प्ले अगेंस्ट कुवैत के साथ अवे एंड कतर. आई थिंक ही मैच्योरिटी इज अ गुड प्लेयर. मैं स्टीवन मेरे को हर टाइम बोलता रहता है उसके बारे में दैट लाल फ्यूचर में इंडिया के लिए खेलेगा, एंड उसने खेला भी ये साल. बट मैं बोलूंगा मेहताब एंड जिंगन, संदेश जिंगन विल बी गुड, बिकॉज मोरलेस दोनों एक ही टाइप के डिफेंडर है. देखते हैं क्या होता है. मतलब भगवान भरोसे है भाई, अब कुछ नहीं. मेरे को तो बहुत एक चीज मैं ऐड करूंगा यहाँ पे. कुवैत के सामने आई थिंक सही बात बोला सैन भाई ने कि जो टेम्परामेंट है वो भी टेस्ट होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है साफ में जिस तरह से उन्होंने प्रोवोकेट करने की कोशिश की थी, और उसमें इगोर ने भी रेड कार्ड खाया था. कुछ प्लेयर ने भी आप देखिए हमारे काफी कार्ड्स वहां पे क्या बोलते कि खाए थे. तो आई थिंक वो भी हमें क्या बोलते फैक्टर इन करना पड़ेगा, क्योंकि अवे में खेल रहे हैं.
सो वो डेफिनेटली कुवैत की टैक्टिक्स रहेगी कि भाई इन प्लेयरों को जितना ज्यादा आप क्या बोलते कि टैकल करके या फिर उससे उनका जो फोकस है वो मैच से शिफ्ट करने की कोशिश होंगी, तो दैट्स आल्सो वन ऑफ द फैक्टर। एंड दूसरा जो आज इंटरव्यू में इगो स्टेमिक ने मेंशन किया है रिगार्डिंग द डिफेंस लाइन, उन्होंने भी कंसर्न जताया है कि पिछले कुछ टाइम से हमारी जो डिफेंसिव लाइन है वो एरर भी ज्यादा कर रही है। उन्होंने मलेशिया गेम्स का भी एग्जांपल दिया कि जो पहले 3-4 साल पहले जो एरर्स कर रही थी वही सेम चीजें रिपीट होने लगी है। सो उन्होंने भी ये मेंशन किया कि कॉम्पैक्टनेस चाहिए होगी आपको कुवैत एंड कतार के सामने, तभी जाके हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिजल्ट, अदरवाइज मुश्किल होगा। सो डिफेंसिव काफी वनरेबल लग रहा है क्योंकि चुंगनुंगा एंड मेहताब इसमें से कौन सिलेक्ट होगा, मोस्ट प्रोबेबली मेहताब ही लग रहा है कि एज पर द एक्सपीरियंस आई थिंक उसको प्रायोरिटी दी जाएगी एंड चुंगनुंगा को भी मौका मिलेगा। हमें एक चीज भूलनी नहीं चाहिए कि राहुल भेके भी हो सकते हैं स्कीम ऑफ थिंग्स में, क्योंकि उसको एज ए फोर्थ सेंटर बैक या फिर उस रोल के लिए ही सिलेक्ट किया गया है, ना कि एज अ फुल बैक, टू बी ऑनेस्ट। सो आई थिंक दैट्स आल्सो वन ऑफ द डिसीजन जो काफी इंटरेस्टिंग डिसीजन रहेगा। Yeah, absolutely. Right back, another potential debatable place, but I think Nikhil will keep a spot, guys. He's been trusted by Igor lot of times actually, so only fair that he would. Aryan, again, couple of days we're hoping that the squad will be out. Until फाइनल स्कोर then, का गाइस बता देते हैं हम आपको। अभी जस्ट टीम कल यहाँ पे दुबई पहुंची है, 2-3 ट्रेनिंग सेशन होंगे आज, कल एंड परसों, जो आज इगो टीम साहब ने भी कहीं बोला है कि उसके बाद वो देखेंगे कि कौन से प्लेयर उस रिदम में दिख रहे हैं। कोई प्लेयर को अगर निगल बिगल होगा तो उसको एक्सक्लूड किया जाएगा। तो 2-3 दिन वेट कीजिए, आई थिंक उसके बाद, क्योंकि आपका मैच 16 को है, दुबई आप ऑलरेडी पहुंच चुके हो, तो आई थिंक टीम यहाँ पे 14 या 15 को ही ट्रैवल करेगी, क्योंकि आई थिंक एक 2 घंटे की फ्लाइट ही होगी वहां से। सो एज सच कोई वो फ्लाइट का भी वो इशू, मतलब लंबा ट्रैवलिंग का कोई इशू नहीं होगा। सो आई थिंक 14-15 को हमारी टीम ट्रायल करेगी, तो उससे पहले आई थिंक फाइनल स्कोर हमें ये जो 2-3 ट्रेनिंग सेशन में वो जज करने के बाद पता चल जाएगा उनको, तो उसके बाद हमें देखने को मिल जाएगी। yeah, 5-3. Don't think he's going to go with a 5 or a 3 at the back because simply he's stuck with the 4 all the way. I don't think he'll change the system all of a sudden going into a big tournament. It's very unlikely that any coach would do that. So a 5 or a 3 at the back is probably out of the question for Igor. Yeah, तो आपको क्या these are लग a रहा couple है? of What do you think, Rahul आप मुझे बताओ, which is the formation they should go for? आप 100% बताओ। for, like, because if you're a coach who has done 4 at the back for last 1 year national team consistently, you can't, going into a big tournament doesn't make sense to try things. That's why I think he should start Nikhil Pujari at right back because he's trusted Nikhil and he's gone with him consistently, so go with him. Same with Mehtab. I would say his second choice right centre back, with third choice centre back has been Mehtab. So go with Mehtab. You've trusted him, go with him, no problem. So I think he should do what he's been doing. Like he shouldn't try something very new all of a sudden. Like I don't और know. Yeah. और सरण भाई एक चीज ये भी तो है कि हमारे जो इंडियन प्लेयर है वो अभी ऐसे भी कोई वर्ल्ड क्लास ऐसे क्वालिटी के प्लेयर नहीं है कि वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में स्विफ्टली मूव होते रहेंगे। उनको तो मतलब टाइम लगता है, आपको पता है। तो इट्स अ बेटर टू बी कि आपका जो फॉर्मेशन है 4-4-2 या फिर 4-2-3-1 जो भी आप बोले, आई थिंक उसी उसी को मोस्ट ऑफ द टाइम इगोस्टे में खिलाते हैं। सो उसी के साथ रहना चाहिए। और मल्लिकार्जुन हीरामत भाई का जो कमेंट है कि बाकी एक्सक्लूड होने वाले प्लेयर क्या करेंगे, वो अपने क्लब के साथ भाई रिज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि क्लब के कोचेस भी चाहेंगे, उनके लिए भी अच्छी बात है कि जो इंटरनेशनल ब्रेक आया उसमें थोड़ा सा और ज्यादा उनको काम करने का मौका मिल जाएगा, प्लेयरों के साथ ट्रेनिंग सेशन ज्यादा हो जाएंगे, सो वो उनके साथ ज्वाइन करेंगे। Guys, this is another interesting point. I think this is very valid from what Vineet is saying. He dealt with Mehtab, sort of got into Mitrovic's head. He's a world class striker, and to get into a player like that, and he gave him a tough time throughout the game, right, until the sending off eventually. But so I think these things kind of matter, and it would have given him some confidence that okay, I can play against a striker of his level. I can possibly do well. So I hope that does well for his confidence going into this tournament. Um, yeah, the only thing that worries me is this. He's not that good on the ball for what probably Igor wants. So what do you guys think about this? तो विथ बॉल तो संदेश जिंगन कैसा, मतलब हाँ, आई true, थिंक true, तो true. But दिस इज अ प्रॉब्लम वी सैम हैव। भाई, he's coming back in हाँ coming to Anwar Ali. I think that's what people will compare him to. That's the problem. बट राहुल, दिक्कत ये है ना कि आपने जितने भी तीनों सेंटर बैक है, संदेश, मेहता या फिर लाल,
तीनों ऐसा नहीं बोल सकते कि बॉल प्लेइंग सेंटर में थे, हाँ कोई एग्जैक्टली नहीं है ट्रू, उसमें से। fair तो enough, दैट इज द डिफिकल्टी ना, आप है ही नहीं तो अब क्या करो आप, absolutely. या तो फिर आपको राहुल फेके को खिलाना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली, अगर आपको बॉल प्लेइंग ही चाहिए तो, कंपेरेटिव टू अगर आप सेंटर बैक से कंपेयर करोगे। सो आई थिंक वो ज्यादा रिस्क हो जाएगा। आई थिंक मेरे को नहीं लगता कि कुवैत के सामने आपको उतना ज्यादा क्या बोलते कि कतार के सामने आप वो रिस्क ले सकते हो, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वहां पे आपको आई थिंक जो आज इगो स्टीवन ने बोला कि कतार ऐसी टीम है कि वहां पे आपको हाई प्रेस करना पड़ेगा, अदरवाइज उन्होंने एग्जांपल दिया कि अलीलाल ने जैसे मुंबई सिटी के सामने खेला होम पे, कि जहाँ पे मुंबई सिटी ने सिर्फ 180 पास किए। सो आई थिंक वो हालत बन सकती है, तो वहां पे अगर आपको कुछ स्कोर करना है देन यू नीड टू टेक अ रिस्क लाइक हाई प्रेसिंग। बट आई थिंक कुवैत के सामने तो आई थिंक मेरे को लगता है कि डिफेंसिवली आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग जाना चाहिए, और अगर आपके लिए तो ड्रॉ है वो भी मेरे हिसाब से पॉजिटिव रिजल्ट है इन अ वे अगेंस्ट कुवैत। सो इट्स Absolutely. बेटर टू नॉट टेक रिस्क। Fair enough, guys. Last contentious position. I think we've already spoken about this a few times. I want to go to Shan because me, Hiren, and Arnav have spoken about this. Gurpreet or Amrinder for you? मैं आई विल थिंक वी शुड गो विद गुरप्रीत बिकॉज गुरप्रीत का नेशनल टीम कलर्स में जो खेलते हैं आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ आई थिंक। और गुरप्रीत परफॉर्मेंस इन द नेशनल कलर्स हैज बीन ऑलवेज बीन ग्रेट। तो और हाल फिलहाल में जब हम लोग सैफ कप खेले थे, उनका एक कॉन्फिडेंस भी था। कुवैत को जो हम लोग टाई ब्रेकर में हराए थे, गुरप्रीत वाज पार्ट ऑफ दैट टीम। जो टाई ब्रेकर में गुरप्रीत वाज आल्सो पार्ट ऑफ द टीम। तो मेरे को लगता है गुरप्रीत होगा बिकॉज यहाँ पे विनीत भी बोला एक्सपीरियंस। आई थिंक विनीत सही है। मेरे को भी लगा एक्सपीरियंस है। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस में आई थिंक बहुत मैटर करता है। इंटरनेशनल क्लब का खेलना और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। और उनका एक बाहर खेलने का एक्सपीरियंस भी है, उनका एक्सपोजर है। और मैं Mhm. देखा हूँ गुरप्रीत को जब भी टफ टीम्स के अगेंस्ट इंडिया खेला है, गुरप्रीत हैज ऑलवेज बीन गुड। जब भी हम लोग कतार के साथ खेले हैं, जब भी हम लोग चाइना के साथ खेले हैं, जब जब गुड गेम्स गुरप्रीत राइजेस टू दैट ओकेशन। और गुरप्रीत को मेरे को उससे आई थिंक वी शुड नॉट थिंक ओनली गुरप्रीत शुड बी प्ले। Okay. Hiren, anything has changed for you? नहीं नहीं, आई कंप्लीटली एग्री विथ सैंडा, और मेरे को भी यही लगता है कि गुरप्रीत इज ऑलवेज बीन दैट फर्स्ट चॉइस गोलकीपर, so you should be going with that, to be honest I think, and मैं समझ सकता हूँ कि with ball playing you need a Amrinder is better with the ball playing distribution everything, but to be honest the feeling is that कि against Kuwait and Qatar you need a short stopper, because I think वो ज्यादा मैटर करेगा, क्योंकि अगर आपने 2-3 गोल खा लिए फिर आप एक गोल मारोगे तो भी कोई फायदा नहीं है। तो इट्स रादर की कंसीडर लेस गोल, एंड उसमें मान लीजिए कि अगर आपने एक ही गोल खाया है फिर आपने चांस मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि चांस नहीं मिलेगा बिल्कुल। सो फिर अगर आप कोई चांस मिलता है 1-1 होता है, दैट्स अ बेटर रिजल्ट रादर देन कि 3-1 लॉस और उस तरह से। सो इन दैट सेंस मेरे को मतलब जो शॉट टेकिंग स्टॉपिंग एबिलिटी है वो गुरप्रीत सिंह की ज्यादा, और एज ए कोर ग्रुप का हिस्सा भी वो मेरे को ज्यादा लगते हैं कंपेरेटिव टू अमरिंदर। आई थिंक अगर आप देखें तो आई स्टिल प्रेफर टू गो विथ गुरप्रीत। Yeah. It'll be interesting to see who gets not. It will most likely be Gurpreet again because I think he is just ahead of Amrinder, I think, in the coach's eyes as well. So it's going to be interesting to see who gets the nod, but I still think it'll be Gurpreet. Guys, moving on to, I think, the sort of topic at the moment that is नहीं, kind of big. Yeah. लाइनअप काफी सारे लोग बोल रहे हैं, सो थोड़ा सा लाइनअप भी अगर आप हम थोड़ा सा No, कर sure. लेते हैं एट द एंड। Sure. एंड कुवैत एंड कतार की भी स्कोर कल दोनों की अनाउंसमेंट हो चुकी है बाय द वे, दोनों ने अपने स्कोर अनाउंसमेंट कर दिए, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्कोर्स फ्रॉम बोथ दी साइड। कार्लोस कुरेस जो कतार के कोच है, एंड लुई बेंतो जो क्या बोलते कि कुवैत के कोच है, दोनों ने काफी स्ट्रॉन्ग स्कोर के साथ आए हैं। सो डिफिकल्ट चैलेंज तो है। सैन भाई से मैं पहले जानना चाहूंगा व्हाट विल बी हिज स्टार्टिंग 11 अगेंस्ट कुवैत। If you ask me, I think we should go with Gurpreet गोलकीपर पोजीशन जो मेरा है। एंड आई थिंक निखिल पुजारी को भी खिलाना है बिकॉज आप उनको खिलाए हो इसलिए। एंड उनका एक एक्सपीरियंस अभी बन चुका है, इज डूइंग गुड आल्सो। एंड आई थिंक संदेश एंड मेहता वुड गेट इन दैट प्लेस। एंड आई थिंक आकाश मिश्रा लेफ्ट बैक पोजीशन में आई थिंक इज अ गुड ऑप्शन। एंड आई थिंक ही इज बीन डूइंग गुड। और साथ साथ अगर मेरे मिडफील्डर्स आप बोलोगे, आई थिंक सुरेश अगेन बिकॉज ही हैज
दैट इन हिम, इंटरनेशनल का जो ये होता है ना वो है उनमें। Apuya to 100% he should be there. Changte, Mahesh, I think Mahesh, now Mahesh Singh is Bengal's player. I think he's doing great. Sahal and Chetri. I think these are the players we can. I think Lord also has more or less उन्होंने Exactly है the उनका same शायद board. एक उनका सेम ही है लग रहा है ना लॉर्ड का भी। हाँ लॉर्ड का भी थापा सेम ही है थापा लग रहा है। थापा थापा सन में आपको नहीं लगता कि सुरेश एंड थापा में से वो विल यू गो विथ? मैं बिकॉज सुरेश के थापा साथ जाऊंगा। रेगुलरली खेला है। हाँ हाँ ये बात ओके है, आईएसएल में खेला है, मैं सुरेश के साथ जाऊंगा बिकॉज वो somehow I feel सुरेश ना इंटरनेशनल गेम्स में ना अभी थापा अगर 2019 वाला थापा होता तो मैं थापा के साथ जाता, अभी मैं सुरेश के साथ जाऊंगा। वो एक होता है ओके मतलब क्या होता है ना इंटरनेशनल मैचेस में ना, आई ऑलवेज गो विद पीपल हु आर गुड on those matches. Thapa, I think somehow I feel he was good when he was in 2019 when Steven was the coach. उसके बाद I think in the national colors he has not done justice to what he has got. जो उनको मिला था I think ज्यादा कुछ वो नहीं कर पाए। Fair enough. यहाँ पर बहुत आदमी लाल को भी बोले, ए, लाल कैन बी ऑल्सो ऑप्शन बट मेरे को नहीं, हाँ लाल को किस पोजीशन में खिलाओगे आप लोग? बिकॉज उनका एक्सपीरियंस एज ए इंटरनेशनल गेम में है नहीं, उन्होंने एशियन गेम्स खेला है बट एशियन गेम्स में आप जज नहीं कर पाओ किसी को, राइट? नहीं कर एशियन पाओगे गेम्स में जो एग्जैक्ट। जापान मिलेगा, कोरिया मिलेगा, और यहाँ पर जो कोरिया मिलेगा वो डिफरेंट है। Yeah. वो है। एग्जैक्टली ये कतार के सामने भी कतार को लेके भी काफी सारे फैंस उसको लाइटली ले रहे हैं। मैं बार बार वही बोलता हूँ कि कतार इन दी फ्रेंडलीज एंड कतार इन दी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स और एशियन कप इज टोटली डिफरेंट बॉल गेम। वो पूरी मतलब आप देखिए कार्लोस कुरेज ने जो स्क्वाड अनाउंसमेंट की है, दैट्स दी अल्दुहेल अल्साद से भाई प्लेयर भर भर के लाए हो। सो जो वो मतलब इस तरह के जो कंपटीशन है जो मैटर करते हैं उसमें तो आपको बड़ी टीमों की ऑलवेज वही देखने को मिलेगी। Rahul, any changes from you in the starting lineup? जो I actually go with सैनदार ने बताया वो। exactly what Lord Becky said. A lot of people I think have very similar lineups. Gurpreet, Nikhil, Lineups. Jingan Mehtab, Akash. The major difference I am seeing is just that defensive midfielder who is between Thapa and Suresh. हाँ I would actually go सुरेश for Suresh. The last couple of games for BFC, I think I've seen a slight change. See, one thing with Suresh, 100 every game he's going to give you 100%. He's going to run his socks off every single game. That हाँ quality difference, I kind of seeing it in the last couple of games. Hopefully, he'll do the same. Anil Thapa, I think again we're still yet to see the best of him this season. It's still hard. It's hard to pick between the two. I would be fine with either, but I would go with Suresh. I think the coach will go with Thapa. So yeah, बिल्कुल बिल्कुल। interesting. What do you think, Hiren? Thapa or Suresh? नहीं नहीं कंप्लीट सूरज का जो है कि कुवैत और कतार वाला गेम में देख रहा हूँ, आई थिंक मोर फिजिकल होने वाला है। सो इन दैट Exactly. केस आई थिंक सूरज इज अपर एंड देन थापा। थापा अगर आपको थोड़ा सा ऑफेंसिव जाना है या फिर वो जाना है देन यू कैन से कि भी थापा विल बी गुड ऑप्शन, बट अगर आपको थोड़ा सा आपको डिफेंसिव जाना है देन सूरज इज द मच बेटर ऑप्शन देन थापा। तो दैट्स व्हाई आई विल आल्सो गो विद सूरज एंड अपुयास midfield pair in the match against Kuwait, to be honest, because I think जिस तरह का एटमोस्फियर होगा, जिस तरह की कुवैत की साइड से एंड जिस तरह से हमारे प्लेयर आ रहे हैं, आई थिंक वी नीड दैट लिटिल बिट। और डिफेंसिवली भी अनवर नहीं है, तो एक थोड़ा सा मिडफील्ड से भी मैं चाहूंगा कि वो एक सपोर्ट मिले और जो क्रूशियल इंटरसेप्शन हो ताकि आपका डिफेंस एक्सपोज ना हो जाए, दैट विल बी मोर क्रूशियल मेरे हिसाब से। सो जितना वो कम होगा आई थिंक उतना इंडिया के लिए क्या बोलते हैं कि गोल कंसीड वो कम करेंगे। So that's why I will also go with Suresh. Fair enough. Fair enough. So these are our 11s, guys. We'll wait for the squad to be announced, and then we can sort of have a nice long chat about this and discuss who's going to make it, who's not going to make it. Hiren, of course, now talking about that other sort of hot topic in the last couple of days, the AIFF. Couple of comments from Baishung Bhutia saying that the elections should be redone. What's happening here? What can you just tell everybody what the story is? What are these comments mean? Why is he saying it right now? जो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर पीटीआई को शायद उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने जो बोला है, उन्होंने बोला है कि जब ये एएफएफ का नया रिजिम आया था लास्ट ईयर, तब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरव्यू किया था, गवर्नमेंट ने इंटरव्यू किया था, हमारे ऊपर फीफा बैन लगा था, अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप होने वाला था, तो उसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि आप बिना नए पूरे कॉन्स्टिट्यूशन, जो नया कॉन्स्टिट्यूशन एएफएफ का अभी भी जिसका सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है हियरिंग्स,
उनको एक्सेप्ट किए बिना उन्होंने सिर्फ बोला था कि आप अभी जस्ट यहाँ पे कोई इलेक्शन फ्रेश इलेक्शन करके आप बॉडी इलेक्ट कर दीजिए, एंड उसके बाद जब पूरा इलेक्शन होगा, सॉरी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तब उसके बाद देखेंगे कि तब क्या करना है। सो भाईचुंग भूटिया ने भी सेम चीज बोला है कि अब फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि आई थिंक जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग भी है वो भी आई थिंक अभी जो फाइनल डिसीजन है वो नजदीक है। एंड उसके अलावा उन्होंने बोला है कि साजिद प्रभाकरन को जो सेक किया वो एक स्कैपगोट के तरीका की किया है उन्होंने, मतलब बेसिकली कल्याण चौबे और बाकी जो एफएफ के ऑफिशियल्स है उनके ऊपर भी इल्जाम लगाया है कि वो भी यहाँ पे दूध के धुले नहीं है, उन्होंने भी काफी सारी ऐसी चीजें की है जो सही तरीके से मतलब एएफए को मैनेज नहीं किया बेसिकली, उनका ये कहने का मतलब था। एंड हम सबको पता है कि जो लास्ट टाइम इलेक्शन हुआ था उसमें कल्याण चौबे के सामने वो खड़े रहे थे। सो इस तरह के एलिगेशन उन्होंने लगाए हैं, सो दैट्स व्हाई ही वांट्स री इलेक्शन। एंड अगर मेरे हिसाब से अगर जो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन जो कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग आएगा, एंड अगर उसमें जो नया कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे क्लोजेस है कि जिसके चलते कल्याण चौबे भी शायद एलिजिबल ना हो, तो अगर ऐसा इसमें एक क्लोज ऐसा भी है कि मान लीजिए कि 25 मैचेस आपको इंडिया को रिप्रेजेंट किया होना चाहिए, तो फिर उसमें शायद कल्याण चौबे फिट नहीं होते हैं, देन री इलेक्शन हो सकता है। सो अभी देखना पड़ेगा कि फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या आता है, क्योंकि उन्होंने नागेश्वर राव जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज थे उनको एज ए रिव्यू कमेटी के हेड के तौर पे बिठाया था, और उन्होंने पूरा जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रिव्यू किया है। एंड बाकी जो पार्टीज है, जितने स्टेक होल्डर है, स्टेट अफेयर्स या फिर जिनको भी कोई दिक्कत थी नए कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि काफी सारे लोगों ने इसके अगेंस्ट वो भी डाली थी पिटीशन की भाई हम इस पॉइंट से हमें खफा है, हम इसको चेंज करना चाहते हैं। तो कोर्ट ने ये बोला है कि फाइनल आपका जितना भी है वो बता दीजिए, और फाइनल वर्डिक्ट आई थिंक इसी मंथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। सो उसके बाद पता चलेगा कि री इलेक्शन हो सकता है कि नहीं होगा। Yeah, very interesting because Shan, we're talking about Baichung Bhutia's comments, but amid all, is it the sort of wrong time for all of this to be happening because India is lining up for a busy international schedule? To have all of this going in the background, does it affect the players somehow? Does it throw them off? Do you think it affects them at all? See, but this yesterday also we said that ये सब चीज हम लोग अवॉइड कर सकते थे. दिस वाज नॉट द करेक्ट टाइम एक्चुअली बेसिकली. अभी इलेक्शन का बात हो रहा है एंड आई थिंक जो जो चला रहे हैं, जो पावर में आ सकते हैं, जो पावर में है, सबको सोचना चाहिए एक्चुअली नेशनल इंटरेस्ट सबसे आगे आता है. जब देश खेल रहा है उससे ऊपर कुछ नहीं है. अगर उसको लेके अगर अभी कौन पावर में रहेगा, कौन पलट जाएगा, अभी बाइचुंग भाई बीइंग एन सीनियर प्लेयर ही शुड हैव अवॉइडेड. अभी दिस इज नॉट अ प्लेस, नो. We should all get together behind the team and support it. बाहर का पॉलिटिक्स चल रहा, वो चल रहा है, चलने दीजिए. But now we are very important. ना, now is the time that we should support our national team. ना, अभी 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 खुद का जो लड़ाई झगड़ा है वो बाद में कर सकते हैं. आप 21 तारीख के बाद करो ना, फिर टाइम तो है. बट अभी वाई आर यू, आप खुद इंडियन के कैप्टन हो चुका. मैं आपको क्या समझाऊं भाई, आपको सब पता है. You know everything. You been an Indian captain. You should understand. No? When you make such statement, ना होता है 100% होता है. ये प्लेयर के ये गलत बात है, हम लोग बोलते हैं ना प्लेयर को कोई इफेक्ट नहीं होता है, थोड़ा बहुत तो 100% होता है. बहुत सारे कभी कभी क्या फैंस या बैंटर प्लेयर का बैंटर है प्लेयर का गेम में इफेक्ट डालता है. बहुत सारे बार ऐसा हुआ है. Many of the players will say you when you talk to them offline, they will say you these things. बट कभी कभी उनको पर्सनल लग जाता है. बिकॉज होता है, एवरीबॉडी इज ह्यूमन बीइंग. दे आर स्पोर्ट्स पर्सन, वी ऑल नो दैट, वी लुक अप टू देम. बट ये हो जाता है. और अगर हम लोग तभी नेशनल, तभी इंडिया इज प्लेइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम ऑन 16 and 21st ऑफ दिस ईयर, एंड वी आर नॉट एट ऑल फोकसिंग ऑन दैट, एंड वी आर फोकसिंग थिंग्स ऑन व्हिच आई थिंक वी शुड अवॉइड फोकसिंग ऑन. और ये सबसे गलत चीज है. एक चीज सैन भाई, आई थिंक बिल्कुल आपने सही बोला कि दिस इज द जो नेक्स्ट 10 डेज है, आई थिंक इंडियन फुटबॉल के जो नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर का फ्यूचर है, 2-3 साल का, आई थिंक वो डिसाइडिंग करने वाले मैचेस है. एशियन कप से भी इम्पोर्टेंट मैं इनको मानता हूँ. सो इन दैट सेंस डेफिनेटली एक वो चेंज करता है. और एक दूसरा यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगा रिगार्डिंग द कतार मैच टिकटिंग. आई थिंक वो भी अभी तक एएफएफ ने यहाँ पे कुछ उसका अनाउंसमेंट नहीं किया. अब देखिए कि दीपावली का सीजन है, अगर किसी को मान लीजिए कि मेरे को अगर भुवनेश्वर मैच देखने जाना है 21st, आपने अभी तक टिकट अनाउंस नहीं किया. मेरे यहाँ से ट्रैवलिंग ऑप्शन दो है, या तो एयरप्लेन या तो ट्रेन. एरोप्लेन एक ही फ्लाइट चलती है अहमदाबाद से, वो फुल चल रही है, मैंने चेक किया. उसके आगे पीछे डेट की भी फुल चल रही है. 21 को तो फुल ही है, 20 को भी फुल चल रही है, 19 को भी फुल चल रही है, क्योंकि फेस्टिव सीजन है. उसके अलावा ट्रेन का ऑप्शन है. ट्रेन में आपका सारा मतलब आपको पता ही होता है कि वहां पे तो मिलने वाला नहीं है, पूरा वेटिंग वाला चल रहा है. और वो
उसमें भी अगर आप देखें तो 26-27 ओवर्स की जर्नी है। सो ये सारी चीजें, आप प्रमोशन भी आपने कहीं नहीं देखा, मैंने मेरे हिसाब से, कि हम वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के 2 मैचेस खेलने वाले, आप कहीं एड नहीं देखा, ब्रॉडकास्टिंग का कुछ अभी तक आपने अनाउंसमेंट नहीं किया। तो आप कैसे माहौल, मतलब हम बोलेंगे, फिर हम ही लोग बोलते हैं कि भाई आप कतार वाले मैच में भुवनेश्वर में लोग इकट्ठा नहीं हुए, कैसे होंगे? आपने आप लोगों को टाइम ही नहीं दे रहे हो प्लानिंग करने का। आज मैंने सोशल मीडिया पे रखा तो एक बंदा मेरे को बोल रहा है कि मैं भाई दिल्ली से हूँ, मैं जाने का प्लानिंग कर रहा था, लेकिन अभी तक कुछ आया नहीं है। सो आप प्लानिंग नहीं कर पाओगे, अगर जाना भी है तो आप नहीं जा पाओगे, सिंपल सी बात वो है। सो ये छोटी छोटी चीजें है जो कि आपको सही करनी चाहिए, एंड ये तो मैनेजेबल थिंग है। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई मतलब हाई लेवल का नॉलेज चाहिए। ये तो अगर आपको थोड़ा सा भी पता है तो भी ये मैनेज कर सकते हो। सो ये भी एक मेरे को लगता है कि आपने, आई थिंक साफ के टाइम पे भी हमने बोला था कि इंडिया पाकिस्तान का मैच का जिस तरह से आपको हाइप करना चाहिए था, मार्केटिंग करनी चाहिए थी, उस तरह से आपने नहीं की थी। सो लेट होप सो ये भी सारी चीजें क्या बोलते हैं कि एजेंडा में होनी चाहिए, रादर देन ये बाकी जो फालतू की चीजें आप कर रहे हो। उससे तो अच्छा है कि ये सारी चीजें भाई बेटर तरीके से करें तो अच्छी बात है। Absolutely. Shain, a lot of people in the comments are very curious about the piano, the grand piano behind you. But just बजाते on हो a या light फिर हाँ, ऐसे ये दिखाने के लिए रखा है सेम भाई? just on a light दिखाने about के that. लिए ही है ना। वो बजाने के लिए, दिखाने के लिए। No, but out of curiosity, Shain, do you play any instrument? नो नो भाई, आई एम नॉट गुड एट दोस थिंग्स। Eh, आता नहीं है भाई ये। eh, आई लव हियरिंग, आई लव हियरिंग, eh, बट आई yeah, डोंट। yeah, yeah. मेरे पास है पियानो। मैं बीच में सीखा भी था थोड़ा दिन, 1 महीने का रहा हूँ। फिर क्या है कि रेगुलर अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे आप। Def- सो मेरे को कुछ नोट्स आते हैं अभी बजाने, बस। लेकिन मेरे को इंटरेस्ट काफी है, मेरा मतलब हॉबी की तरह आप ले सकते हो, लेकिन टाइम का थोड़ा सा वो इश्यू है। तो एंड थोड़ा सा इसके लिए कोचिंग करना पड़ता है। आप मतलब मैंने एक सीखा है वो, मतलब यूट्यूब से और वैसे सीखा है, तो उसमें आपको बेसिक पता चल जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई सॉन्ग है और उसको आपको बजाना है तो वो आप नहीं कर पाओगे एकदम से। Fair enough. So, वो वाली Uh, चीज है। I saw something. I mean, again, we spoke about this group, guys. Back to Indian football. Gianni Infantino, FIFA's president, is going to watch the Santosh Trophy final. What sort of impact is this going to create, if at all any? Shan, what does this mean to you? That the What does it mean? Like, what would you tell the fans? कुछ कुछ इम्पैक्ट क्या, मतलब क्या इम्पैक्ट आ सकता है? नथिंग। बिकॉज 2007 में ईस्ट बंगाल मोहन बगान मैच देखने सेम ब्लैटर भी आया था कोलकाता में, वो देख के चला गया बस। उसके बाद भी बहुत कुछ होने वाला था, वो कुछ नहीं हुआ। अभी क्या मतलब, यू कैन कम एंड वॉच अ गेम ना, संतोष ट्रॉफी अगर आप कर रहे हो। कहाँ पर होगा इस बार संतोष ट्रॉफी? सऊदी अरेबिया में कर रहे हैं अरुणाचल क्या? अरुणाचल अरुणाचल अरुणाचल। अरुणाचल। तो अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे, देख के चले जाएंगे, और क्या होगा, मैक्सिमम यही होगा। Fair. See, this kind of visits hardly matters, जैसे कुछ नहीं Yeah, हुआ yeah, अभी yeah. तक। आई हैव नॉट सीन। मतलब कभी हम लोग भी एक्सपेक्ट करते मोहम्मद बिन हमाम आएंगे एंड सेलिब्रेटर आएंगे, पूरा पूरा चेंज हो जाएगा। हाँ, एंड उन्होंने विजिट किया, सब सब मैदान एंड ऑल द कोलकाता मैदान को विजिट किया, एंड वेरी गुड क्राउड, वेरी गुड क्राउड। फर्स्ट आई लीग मैच, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं हुआ। वी आर स्टिल वेयर वी आर। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स दैट डजंट हैपन, नथिंग, ओनली एकदम पीआर स्टंट, नथिंग, कुछ नहीं होता इससे। उनको आना है, इंडिया एक बड़ा मार्केट है, आके दिखाना है, उनका भी वोट है, वोट इंश्योर करना है। एवरीथिंग, सी एवरीथिंग Yeah, गोज इन yeah, दैट वे ओनली। वर्ड क्या पॉलिटिक्स, होगा? हाँ वो तो हर जगह चलती है। नहीं, क्या होगा? क्या इम्पैक्ट है? नहीं, व्हाट इज द संतोष ट्रॉफी जो होगा, उसका क्या शेड्यूलिंग है, क्या नहीं है, उसका कुछ क्लैरिटी है? आई डोंट थिंक उसका कुछ क्लैरिटी है, अभी तक दे पाया है, because उनको कुछ पता ही नहीं क्या होने वाला है। अभी आ रहा है, इट्स आज गुड, कुछ होगा। आज 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 सच बताऊं, मैं आज एक्साइटेड रहा शिलोंग लाइजोंग का मैच देखने के लिए, कि भाई उनके होम पे, क्योंकि उनका ग्राउंड है, मेरे को बढ़िया लगता है, क्योंकि एक प्रॉपर फुटबॉल ग्राउंड है, एटमोस्फियर हाँ, वहाँ पे वो बनता है। एंड हमने लास्ट सीजन पे देखा था आई लीग 2 में, कुछ उन्होंने जब कुछ मैचेस उन्होंने लाइव किए थे अपने हिसाब से। आई लीग 2 तो AFF ने तो ब्रॉडकास्ट नहीं किया था, तो मैं एक्साइटेड था कि भाई आई लीग का उनका मैच है, मैं देखूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आपने ब्रॉडकास्ट ही नहीं करे थे। तो ऐसे मैचेस जो पता है आपको कि भाई लोग, आप देखिए थर्सडे आफ्टरनून था, फिर भी लोग देखने को आए थे वहां पे, फुल क्राउड था, 5500 पीपल आर वाचिंग दैट मैच। सो दैट शोज कि भाई किस तरह का सारी चीजें है। लेकिन
अब देखिए ब्रॉडकास्ट ही नहीं हो रहा था, तो पता ही नहीं है लोगों को कि कौन सा मैच ब्रॉडकास्ट करना है, कौन सा नहीं करना है। इस तरह की प्रोडक्ट है जो आई लीग के मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम है, शिलोंग लाइजोन का है जो। एकदम एकदम ऐसे मैचेस को अगर आप लोगों के सामने नहीं रखोगे तो फिर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? तो ये सारी चीजें इन्फेंटोनो की विजिट, इट्स नो डाउट बिग, मतलब क्या बोलते हैं कि बिग न्यूज जरूर है कि वो यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, लेकिन इससे फायदा कितना फीफा, जैसे मतलब मान लीजिए कि वो फीफा की ओर से और ज्यादा हमें कोई हेल्प मिले, जैसे आरसीन वेंगर की विजिट है कि जिसमें अभी वो बताया कि हम एकेडमीज खोलेंगे, सो वो अगर इम्प्लीमेंट होता है देन इट कैन बी कि हम बोल सकते कि यहाँ पे उनकी विजिट का कुछ फायदा हुआ। नहीं तो हमने कोलकाता में तो देखा है कि कितने लेजेंडरी प्लेयर्स विजिट करके चले गए, लेकिन उसका कुछ होगा नहीं फायदा आपको जब तक उसके आने से एकेडमीज, प्लेयर, स्काउटिंग, कुछ भी आपको हेल्प मिले फुटबॉलिंग सेंस में, कोई भी सेक्टर में, देन आप बोल सकते कि उनकी विजिट है वो सक्सेसफुल या फिर हमारे लिए फायदेमंद रही। बाकी तो Yeah. लोग तो आते रहेंगे जाते रहेंगे। Yeah, just wanted your opinion on that, guys. Apart from that, in women's football, we've got a one-all draw that Gokulam played today in the AC Women's Club Championship against Chinese Taipei's Hualien FC. Shine, after that 8-0 thrashing against Urawa Reds, it's sort of a comeback. Happy to see this. It's a हाँ, I'm draw, but happy. yeah, yeah. I'm happy. See, if you see Chinese Taipei as a footballing nation in women's football has been always been ahead of us. So in that case, if I consider the national team as a benchmark, so in that way Gokulam had did a pretty well job. I think what happened with Gokulam that day, I think somehow वो सेकंड हाफ में कोलैप्स कर गए। जो इंडियन टीम्स होते हैं, गोकुलम का जो टीम हुआ था, मतलब दैट गेम दे कोलैप्स इन द सेकंड हाफ वेरी बैडली, and hopefully that they continue this way. I think I was happy with 1-1 draw. I think इससे ज्यादा मैं एक्सपेक्ट भी नहीं किया था भाई। मैं अगर ड्रॉ भी हुआ, आई थिंक इट्स गुड एटलीस्ट गोकुलम इज ट्राइंग। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पर, गोकुलम अपने वुमेन्स टीम को बहुत सीरियसली लेके जो कर रहा है, आई थिंक बहुत बहुत सारे आईएसएल क्लब को फॉलो करना चाहिए। आई थिंक ये Mhm. चीज we should look into, but you can be ISL champion but you don't have a women's team, and that's a shame. Yeah, yeah, absolutely, absolutely. Hiren, this game one all draw. What do you think of it? I think we've lost. आई थिंक Yeah, yeah, Hiren, yeah, मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है ना? yeah. We can hear you. We can hear हाँ you. क्लियर है। इनका कनेक्शन का इश्यू हो गया। Yeah, हाँ सुनाई दे रहा है। we can hear you though. Yeah, slight issue there, but yeah, Shan, like you were saying, I think completely. It is a positive result after that 18th thrashing. Of course, we come back to this whole topic of women's football has to improve from the ground level. There's a lot of things that have to go right. Technical ability is probably not at the level of the rest of Asia. Then you have to. A lot of clubs don't focus on their women's teams. We come back to the same conversation, but at least it's good to see that we've played out a one-all draw here. It's kind of positive, and yeah, the international sort of football break is upon us. We first play Kuwait, and then we play Qatar. Shine, if I asked you which of these two are the tougher games, what would you say? राहुल, अगर मैं बोलूंगा, if you ask me, the first game will be much tougher for us. Okay. क्यों मैं Okay. बोलूंगा, इसका मैं रीजन दूंगा। बिकॉज अवे में हम लोग का रिकॉर्ड हैज बीन हॉरेंडस। अवे वी डोंट हैव, मेरे को लगता है अवे में अगर वो मैच से अगर हम लोग कहीं से भी एक पॉइंट ले ले, आई थिंक वी हैव डन अ ग्रेट जॉब। एंड Mm-hmm. ईगोस टू मैच को मैं मान लूंगा अगर हम लोग कुवैत से एक पॉइंट ले लेते हैं अवे में जाके, बिकॉज Uh, सच एन डिफिकल्ट टीम इट विल बी इन अवे fair enough. Fair enough. अगेंस्ट कुवैत। बताओ। Absolutely, absolutely. No, Vishad's asking players to look out for. Any particular players you have your eyes on? कतर से आई थिंक ऑलवेज मेरा जो फेवरेट रहा है अल्मोइज अली। आई थिंक ही इज वन ऑफ माय फेवरेट्स, एंड सबको याद भी होगा दैट व्हेन ही प्लेड लास्ट ईयर इन द एशियन कप ही वाज टू गुड अ प्लेयर। सो Yeah. अल्मोइज अली के तरफ आई थिंक मेरा नजर रहेगा। आई थिंक कतर का अवे रिकॉर्ड हैज नॉट बीन सो ग्रेट, सो दैट वाइज अगर तुम्हारा क्वेश्चन का मैं आंसर अगर दे दूं, आई थिंक कतर वाला गेम, आई थिंक इफ वी कैन गेट इन 1 पॉइंट, आई थिंक 2 पॉइंट्स इन फर्स्ट 2 गेम्स, वी आर थ्रू टू द थर्ड राउंड। मैं आपको बता रहा हूँ,
If we get 2 points Okay. out of the Okay. first 2 games, Okay. we are going to the third round. इतना मैं आपको बता सकता हूँ. Interesting. Hassan Interesting. If you, Alvarez is a super player. I think Hassan Alvarez last बार इतना शॉट मारा था, लॉर्ड बेको को याद होगा, इतना शॉट मारा था, थक गया था मार मार के, और गुरप्रीत सेव करते करते थक गया था. yeah. And he said that this guy should be playing in the EPL. What he's doing here Yeah. after the game. What about from India, Shan? From an India point of view, any particular ones to watch and keep an eye on for you? मैं एक्साइटेड हूँ अपुया कैसे खेलता है, बिकॉज Okay. अपुया के Okay. ऊपर पीपल हैव वेर एक्सपेक्टिंग अपुया को लेना चाहिए वंस ही इज देयर. अभी अपुया कैसे रिस्पॉन्ड करता है, मैं श्योर दैट ही विल डू गुड. मैं श्योर, बिकॉज उसके पास वो टेम्परामेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टेम्परामेंट होता है इंटरनेशनल मैच खेलने का, वो Exactly. है उस, तो कर लेगा मेरे को लग रहा है. और एक प्लेयर आई थिंक जिसके ऊपर जिम्मेदारी रहेगा, मेरा आंख का नजर तो नहीं रहेगा, बट मेरा जिम्मेदारी रहेगा इंडिया को बचाने का, वो है मेहताब सिंह को लेके मेरा थोड़ा डाउट लग रहा है. एंड मेरे को लग रहा है निखिल पुजारी, यहाँ पर एक भाई बोल रहे थे ही इज वन ऑफ द वीकेस्ट लिंक इन दिस टीम. आई टोटली एग्री विथ Yeah. हिम. Yeah. ही इज वन ऑफ Yeah. द, रियली ही इज वन ऑफ द वीकेस्ट लिंक इन द टीम, बिकॉज very easily he can get cards, and I think he can commit fouls. I think ये सब मैचेस में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Yeah. Uh, Shan, एकदम. before leaving, I just want to take this last one. Vikram Pratap wildcard says Vineet. Do you think he's going to make it into the final squad? First thing, first question. And if he does, do you see him get minutes? I don't think so. Don't think so. Okay. Okay. Fair enough. Fair enough. No, I mean it's fair enough. जितना मैंने देखा है हिगोशी मैच को, जितना इतना 4 साल से देखने के बाद मेरे को ये लगा, ये चांसेस काफी कम लग रहा है मेरे को इसका. Okay. ट्राई No कर worries. सकता है, ऐसा नहीं है. आई थिंक करने से अच्छा है. आई थिंक उन भाई ने जो पॉइंट बोला एकदम सही बात. ट्राई तो कर सकते हो ना यार, ट्राई तो यू कैन ट्राई. नहीं Yeah. यू हैव टू बिल्ड प्लेयर ना. सुनील कितना दिन टानेगा यार, कितना दिन, हाउ मच ही. Yeah, but what you're saying is right, Shayan. I think we're seeing Vikram, the best of Vikram Pratap in the last couple of months. I don't think it's fair to drop your players who've played for a long time based on 2 months performance. I think I want to see it from Vikram Pratap for a year, and then we can start thinking about okay, national team, all of this. But anyways, so that's about it, guys. Unfortunately, Hiren has some network issues, and he unfortunately has not been able to join. But Shayan and I are here, and thanks for everybody in the chat for joining this conversation. Please do share and subscribe the stream and to all the channels, Sports Khabri, Indian Food and Football, Curious Harry, and Arun Foot. And we'll be back for more Indian football conversations, guys. Good night, Chan, and good night, everybody. Thank you so much. Thank you.